Hi guys, I welcome you all to Inside This is YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be your last video for CDS 1 2022 on this YouTube channel. So a lot of you have been requesting me that ma'am please top 100 questions leke aa jao on YouTube for the current affairs. Now, as you guys know, I believe more on smart study. I will be cutting it a little less and will be putting it out as top 50 current affairs that are very important for सीरियस परस्पेक्टिव. प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जितने भी मैंने पार्ट्स डाले हैं करंट अफेयर्स के पार्ट 1 to पार्ट 6 वो अच्छे से कवर कर लिए, प्लस कुछ रिविजन वीडियोस हैं. एंड दिस वीडियो आई होप दिस इज मोर देन इनफ फॉर द करंट अफेयर्स. एंड एज यू गाइज नो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम आवर सीरीज ओनली एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हैव दोज क्रॉस्ड फिंगर्स ऑन कि प्लीज़ यूपीएससी अपना पैटर्न सेम रखे एंड द क्वेश्चंस will help you out in the examination. Okay, so let us now start right away with the questions without wasting any more time, because I know there's real shortage of time right now. So let's start. The first question says India's supermom tigress, unka naam kya hai jo abhi recently Pench Tiger Reserve mein thi and she passed away and she has given birth to a lot of cubs and इनकी वजह से tiger population में काफ़ी rise आया है. What is the name? So she is named as Kolawali. Now my question to you is Pench Tiger Reserve is present in which state? Okay, कौन से state में tiger reserve है? Coming to the next question, which lake is located in Odisha state जहाँ पे भी recently bird census conduct किया गया था? So it is also one of the largest brackish water lake. I hope आप सबको पता चल गया होगा कौन सी है. कौन सी है ये? दिस इज चिल्का लेक, राइट? चिल्का लेक है ये. यहाँ पे अभी रिसेंटली बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया था. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ ने मिलके सर्वे किया एंड एज यू गाइज नो यहाँ पे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, राइट? माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन देयर कंट्री दे कम स्पेंड सम टाइम हियर बिकॉज इट्स हॉट, सो दे काइंड ऑफ स्टे हियर एंड दैट इज द टाइम जो बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया था. Moving on to the next one, on the occasion of 74th Army Day, that is 15th of January. Now, Army Day कब होता है? 15th Jan. Monumental national flag जो था वो display किया गया था. At which place? So they are asking at which place it was displayed. So the answer for the same is Longewala. आप जानते हैं यहाँ पे 1971 का जो war है वो हुआ था. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्लैग, दिस इज मेड आउट ऑफ खादी एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो आज तक डिस्प्ले किया गया है. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड इफ आई टॉक अबाउट लोंगेवाला, ये कहाँ पड़ता है? दिस इज एक्चुअली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, this is more than enough. इतनी knowledge काफ़ी है इसके बारे में. Now, who has authored the book titled Fearless Governance? As you know, she has also stayed as the governor and has also been the first lady IPS, right? What is the name of her? She is none other than Kiran Bedi, right? Next one is who has been appointed as the 10th chairman of ISRO. Extremely important question. काफ़ी ज़्यादा chances कि आएगा ये question. So the answer for the same is S. Somnath. ये पहले भी discuss कर चुकी हूँ. Coming to the next one, at which place 216 feet tall Statue of Equality has been commemorated? So as you guys know, Statue of Liberty कहाँ है and किसका है ये आप मुझे आंसर करेंगे और कौन सी लेक पे है वो, because last time इस पे question भी आया था, right? That is not important right now. What is important is Statue of Equality. तो ये 11th century के भक्ति से जिनका नाम था श्री रामानुजनाचार्य, उनकी दिस इज बेसिकली हिज स्टैचू एंड ये इनॉग्रेट करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. ठीक है, and at which place it has been inaugurated? The answer for the same is Hyderabad. Okay, moving on to the next question. What was the theme of National Science Day जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 28th Feb? So 28th Feb को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? National Science Day. और इस बारी उसका जो थीम था that was integrated approach in science tech for what? For sustainable future. ठीक है, sustainable future. Okay, this had been its what? Theme. Okay. Moving on to the next one, that is Central Sector Scheme जो कि लॉन्च की गई है by Ministry of Social Justice Empowerment, ताकि जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है
and all the people who are engaged in the act of begging. So वो लोग जो हैं they can actually be provided with few help, rehabilitate कर सकें. So इसका क्या नाम है इस स्कीम का? It is स्माइल. स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2022 for these particular categories. So if I talk about the best film, the answer for the same is Shersha. Best actor मिला है रणवीर सिंह को. कौन सी मूवी के लिए? 83 के लिए. एंड टॉकिंग अबाउट द बेस्ट एक्ट्रेस, दैट इज कृति सैनन. कृति सैनन को किसके लिए मिला है? उनकी मूवी मिमी के लिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रिपब्लिक डे परेड हुई थी, आप जानते हैं. तो बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट किसे मिला है? इंडियन नेवी को मिला है. लेकिन अगर बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट पॉपुलर चॉइस की बात करते हैं, सो दैट हैज बीन गिवन टू इंडियन एयरफोर्स. बेस्ट स्टेट टैब्लू किसका रहा है? द आंसर फॉर द सेम इज महाराष्ट्र. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पद्म विभूषण जो है अवार्ड दैट हैज बीन अवॉर्डेड टू जनरल बिपिन रावत posthumously. As you guys know, due to a very sad incident, he passed away along with his wife, and for civil services Padma Vibhushan उन्हें मिला है. Okay, and these two ladies are the daughter of Bipin Rawat, and they have received this Padma Vibhushan on his behalf. Moving on to the next one, that is Henley Passport Index 2022. So इसमें जो first रहा है that is Japan and Singapore, second is Germany and South Korea. If I talk about passport index, इससे पता चलता है किसकी पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है. Okay, so that is the case. And जो इंडिया की रैंक है इस बार इम्प्रूव हुई है. पिछली बार 90 थी, इस बार 84 हुई है. So that is basically a good thing for India कि इस बार इसकी जो रैंकिंग है that has appreciated. Moving on to the next one, that is Indian contestant जिन्हें क्राउन किया गया है as Miss Universe 2021. The name of the lady is Harnaz Sandhu. And if I talk about the ladies who have got it before her, so हमारी कंट्री से फर्स्ट मिला था सुष्मिता सेन को. She was crowned as Miss Universe. And उसके बाद लारा दत्ता. And अब जो थर्ड जो बनी है that is हरनाज संधू. Okay. नेक्स्ट वन इज द सिटी जिसको लिस्ट किया गया है एज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बाय IEU's वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दैट इज नन अदर देन तेल अवीव. ठीक है, तेल अवीव कौन सी कंट्री में है ये आप बताएंगे मुझे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कौन सा ऐसा इंडियन फेस्टिवल है जिसको यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी पे इंस्क्राइब किया गया है? द आंसर फॉर द सेम इज दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? आप सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल में, राइट. द नेक्स्ट वन इज ज्ञानपीठ अवार्ड्स जो हैं वो किसको मिले हैं इस बारी? सो 2020 दैट इज 56th मिला है नीलामानी फूकन को. ठीक है, एंड कौन सी लैंग्वेज के लिए मिला है? असमीज के लिए मिला है. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द 57th ज्ञानपीठ 2021 दैट हैज बीन अवॉर्डेड टू दामोदर मौजो. और कौन सी के लिए मिला है? ये कोंकणी के लिए मिला है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द मोटो ऑफ G20 समिट जो कि रोम में इस बारी होस्ट किया गया था इन इटली वॉज फ्रॉम, उसका मोटो क्या है? ओके, सो द आंसर फॉर द सेम इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी. द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो रिपोर्ट रिलीज की है IQ Air ने. IQ Air क्या है? ये एक एक्चुअली स्विस बेस्ड एयर क्वालिटी कंपनी है. ओके, एंड इसने रिलीज किए हैं कि कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं. सो उसमें आउट ऑफ द टॉप 10 हमारी कंट्री की 9 सिटीज़ हैं. ओके, द टॉप वन इज़ होतन दैट इज़ इन चाइना. बट उसके बाद देखो गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बिसराग, जलालपुर, देन भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, Lucknow, Delhi. So they all are a part of like these top 10 most polluted cities. Coming to the next one, as you guys know, स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2021 में. तो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है,
उसकी रैंकिंग की बात है। सो फर्स्ट आया है इंदौर। हमेशा अगर क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल आता है स्वच्छ सर्वेक्षण में क्लीनर सिटी, सो इंदौर आप आंसर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 1 लाख से कम पॉपुलेशन में, सो द आंसर फॉर द सेम विल बी वीटा, देन लोनावला एंड देन Saswad. Okay, and if I talk about the best Ganga town, that is Varanasi. Okay, moving on to the next one, that is Booker Prize जो इस बार दिया गया है. So it has been awarded in 2021 to Damon Galgut. Okay, कौन सी बुक के लिए? The Promise is the book जिसके लिए इन्हें मिला है. And ये कौन सी कंट्री से हैं? ये साउथ अफ्रीका से हैं. नाउ इंडियन ऑथर्स जिनको बुकर प्राइज मिला है और उनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, ये आप देख लेना, बिकॉज बुक्स वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है एंड बुकर प्राइज वाले काफ़ी फेमसली स्पेसिफिकली इंडियंस वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे अरविंद अडिगा के बारे में पूछ लेंगे. ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. Moving on to the next one, that is according to India's State of Forest Report ISFR 2021, टॉप 5 स्टेट्स जिनमें इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर. तो फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पे तेलंगाना, थर्ड जो है उड़ीसा, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ झारखंड. ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट, कौन से स्टेट ने मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज देखा है इन 2 years? सो द आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, दैट इज आंध्र प्रदेश. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 21 के होस्ट कौन रहे हैं एंड विनर कौन रहा है? सो होस्ट हैड बीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान, और इसके साथ साथ विनर की बात करें दैट हैड बीन ऑस्ट्रेलिया. ओके, एंड ये किसके अगेंस्ट जीता है ये आप बताएंगे मुझे. Coming to the next one, which Indian city has been ranked second most noise polluted city globally as per UNEP Annual Frontier Report 2022? So इसका जो आंसर है that is B, मुरादाबाद. ये कुछ important reports हैं. ये reports जो हैं कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिफिकली अपनी जब खुद की cities हैं या वर्ल्ड में prominently कहीं ना कहीं we are seen. So चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, that type of questions come up. Okay, next one is which institution releases India Press Freedom Reports 21? इसका जो आंसर रहेगा that is RRAG, Right and Risk Analysis Group. कौन सा स्टेट है जिसने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को टॉप किया है? तो इसका क्या आंसर है? बी, गुजरात. ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज बीन हिट बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन्स जिनका नाम है रेन बॉम्ब्स. वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, ऑयल स्पिल है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. अर्थक्वेक आया है कहीं पे, साइक्लोन आया है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर वेरी मच इन न्यूज़ कम्स अप. सो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑस्ट्रेलिया. द नेक्स्ट वन इज कौन सी स्पीशीज़ है जो कि इन्फेक्ट हुई है एल्स देन ह्यूमन्स फ्रॉम ओमिक्रॉन वेरिएंट SARS-CoV-2? So the answer for the same is white-tailed deer जो हैं, they have also been affected by Omicron. Next one is Kasuveli wetlands जो कि नेम किए गए हैं अब एज बर्ड सेंचुरी. ठीक है, ये पहले सिर्फ वेटलैंड थे, अब ये बर्ड सेंचुरी है. ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? द आंसर फॉर द सेम इज तमिलनाडु. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कौन सा स्टेट है जिसने अप्रूव किया है केसरे हिंद को एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई? The answer for the same is what? Arunachal Pradesh. ठीक है, the next one is as per air quality report index, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, right? I showed you the 10 cities that were there. Out of that, one was in China. If I talk about total 100 populated cities in the world, तो हाईएस्ट नंबर किसका है इन 100 सिटीज़ में? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सिटी सबसे ज़्यादा इन टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज़ में? तो इसका आंसर इज नन अदर देन इंडिया. इंडिया की सबसे ज़्यादा सिटीज़ हैं एज पर टू IQ एयर, ठीक है, इन टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नीति आयोग की और RBI की रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार. तो अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है जिसका नाम है डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया. लॉट ऑफ पीपल विल सी दिस एंड थिंक कि RBI ने लॉन्च किया है. नहीं, ये नीति आयोग ने किया है.
नेक्स्ट वन इज हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी नीति आयोग ने रिलीज की है। आरबीआई ने कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की है। द फर्स्ट वन इज एफएसआर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि इसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट है। एंड एक और दैट इज स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी फॉर बजट ऑफ 2021-2022, ये भी रिपोर्ट आरबीआई ने ही करी ऑफ कोर्स। सो एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस यूजुअली आरबीआई। फाइन। Moving on to the next question, that is, which country has recently purchased 25 Chinese J-10C fighter jets? सो आप जैसे कि जानते हैं चाइना आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली फॉर्म में है अलॉन्ग विद पाकिस्तान, सो द आंसर विल बी पाकिस्तान फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रिक्स समिट, G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनको कंबाइंडली ब्रिक्स कंट्री बोला जाता है। 14th जो समिट है 2022 में कहाँ होस्ट होने वाला है? सो द आंसर फॉर द सेम इज गोइंग टू बी चाइना। 13th ब्रिक्स समिट जो है 2021 में वो कहाँ होस्ट हुआ था? इंडिया में हुआ था। इससे पहले ब्रिक्स समिट इंडिया में कब होस्ट हो चुके हैं? 2 बार हो चुके हैं, 2012 एंड 2016। तो इसका मतलब है इंडिया में ये 3rd टाइम होस्ट हुआ है। ओके। 17th G20 समिट जो है वो कहाँ होने वाला है? अच्छा, इंडिया में कहाँ हुआ था, एट विच लोकेशन, ये आप मुझे बताएंगे। ओके। 17th G20 समिट जो है 2022 वो कहाँ पे होस्ट हुआ? बाली में होने वाला है, दैट इज इन इंडोनेशिया, राइट। 2021 में कहाँ होस्ट हुआ था G20 समिट? इट वाज होस्टेड इन रोम, इटली। एंड अगर हम इसकी बात करें मेजर फोकस किस पे था, मतलब जो अगर इसकी थीम एंड मोटो की बात करते हैं, सो पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके। नेक्स्ट वन इज 9th बिम्स्टेक मीटिंग जो है वो कहाँ होस्ट होने वाली है? सो द आंसर फॉर द सेम इज भूटान। और 8th कहाँ हुई थी? इंडिया में होस्ट हुई थी। अच्छा, बिम्स्टेक जो है इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ आती हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है ढाका में, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? हमारे पास टोटल 5 जो हैं दे आर फ्रॉम साउथ एशिया, ठीक है। और जो 2 हैं वो कौन सी? साउथ ईस्ट एशिया की हैं। साउथ ईस्ट एशिया की कौन कौन सी है? देखो, ये याद करने का थोड़ा इजी तरीका है, म्यांमार और थाईलैंड है हमारी। ओके। एंड साउथ एशिया की अगर बात करते हैं, हमारे खुद के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ भूटान, ओके, बांग्लादेश, हमारा खुद का देश भी है इसमें, इंडिया, देन श्रीलंका इज़ देयर, ओके, और नेपाल। याद हो जाएगा, इजी है। अच्छा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज 5th ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस कहाँ होस्ट हुई है? सो द आंसर फॉर द सेम इज कोलकाता। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो इंडिया में होस्ट हुई है इस बारी बाय ICCR। और ये कहाँ पर होस्ट हुई है? नालंदा, बिहार में, ठीक है। फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट जो है वो वर्चुअली मीटिंग होस्ट हुई थी, राइट। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर, ठीक है। ये इसका क्या था? मेन मोटो, थीम था इसका। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लक्ष्य सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इंडिया ओपन जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नॉट ओनली दिस, अभी मार्च में, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन मार्च में ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन फाइनल फर्स्ट टाइम जीता है आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम इंडियन एंड, ठीक है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन फाइनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? लक्ष्य सेन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? 3rd टाइम इलेक्ट हुए हैं। द आंसर फॉर द सेम इज जस्टिन ट्रूडो। एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिडा। ओके। Coming to the next one, who has been awarded the Veer Chakra by President Ramnath Kovind? The answer for the same is Abhinandan Varthman. Okay. Then, गोल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो कि डिक्लेयर किया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसका क्या है? मेक ऑल सिटीज गार्बेज फ्री, ठीक है। गार्बेज को प्रॉपरली म्यूनसिपल्स जो हैं वो ध्यान दें, कैसे उसको कहाँ पे डालना है कचरे को, वो सारी चीज़, ठीक है। देन अमृत 2.0 का गोल क्या है? अमृत की फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। द आंसर फॉर द सेम इज वाटर सिक्योर सिटीज, ठीक है।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सेक्रेट. सेक्रेट की फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी. अगर इसकी हम बात करते हैं सेक्रेट पोर्टल की, तो इसमें एज जो होती है सीनियर सिटीजन की शुड बी मोर देन 60 ईयर्स. ठीक है, वो रजिस्टर कर सकते हैं आप अपने आप को इस पोर्टल पे और अपने लिए जॉब या वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो डेवलप किया गया है, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. मिनिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार. Then ये platform है for the employment basically, right? Moving on to the next one, who has released a report titled Reforms in Urban Planning Capacity in India. Star mark कर लो, very very important. The answer for the same is नीति आयोग. ठीक है, इस रिपोर्ट की जो मेजर रिकमेंडेशन है दैट इज हेल्दी सिटी फॉर ऑल बाय 2030 और अर्बन प्लानिंग को रैम्प अप करना, उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करना. सो दैट इज द मेन थिंग, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच योजना इज द नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च्ड बाय Ministry of Social Justice and Empowerment 2020-2021 for skilling the target group. The answer for the same is PM दक्ष योजना. ठीक है, PM दक्ष को मैंने बहुत अच्छे से 2 बार वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है. अभी जो आपकी योजना वाली वीडियो रिवीजन के लिए डाली थी वो, और करंट अफेयर्स की वीडियो जो मैं आपकी 6 वीडियोस डाल चुकी हूँ, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है. PM दक्ष की फुल फॉर्म देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज कौन सी सिटी जो है वो डिक्लेयर की गई है एज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021. द आंसर फॉर द सेम इज इंदौर. ठीक है, यूजुअली जो टॉप करते हैं दैट इज इंदौर ओनली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडिया का फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप जो कि कंजर्व करेगा इंडिया की प्योर वेराइटीज, इंडिजिनस वेराइटीज को, उसका नाम क्या है? इंडिगाओ चिप. ठीक है, इंडिगाओ चिप है उसका नाम. ये अचीव करने में हेल्प करेगा कि हम अपनी खुद की ब्रीड्स को जो है कंजर्व कर सके और जो फार्मर्स हैं वो अपनी इनकम को डबल कर सके. नेक्स्ट इज कौन सी न्यू जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल लॉन्च की गई है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो सर्व कर सके कि जितने भी जियो टैग्स दिए जाते हैं या फिर कोई भी अगर नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जैसे MG नरेगा है, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट है. सो अगर इनकी बात करते हैं तो इसके लिए एक रिपोजिटरी जो है वो बनाई गई है. इस पोर्टल का क्या नाम है? द आंसर फॉर द सेम इज युक्त धारा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कर लेना. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ विच नेशनल स्कीम टिल 2025-2026. सो इसका जो आंसर है दैट इज PM पोषण जो है उसको कंटिन्यू किया जाएगा. इसको पहले क्या बोला जाता था? एज यू गाइज नो, मिड डे मील बोला जाता था, राइट? सो मिड डे मील में क्या होता है कि बेसिकली जितने भी 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर, उनको क्या है, खाना दिया जाता है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को रिलीज करता है. इसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द विमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स ओल्ड की एज में हैं, दे आर अनीमिक. ठीक है, ये जो पहले था दैट वाज 52.6% फीमेल वर एनीमिक इन 2016, 15 से 49 एज तक. ओके, अब ये जो है नंबर इंक्रीज हो गया है एंड दिस इज नाउ 53%, ओके, इन 2020. एंड इफ आई टॉक अबाउट चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी, सो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है कि जो लो वेट एज पर टू द हाइट, अगर चाइल्ड है उसका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो कम है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं. ऑलमोस्ट 17% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन जो कि 5 साल से कम एज के हैं, दे आर स्टिल अंडर चाइल्ड वेस्टिंग, एंड 34% चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर अंडर व्हाट? चाइल्ड स्टंटिंग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक्वायर करे हैं 2 मिराज जेट्स. कौन सी कंट्री से करे हैं? सो द आंसर फॉर द सेम इज फ्रांस. फ्रांस में जो डसॉल्ट एविएशन है उससे हमने एक्वायर करे हैं, राइट? एंड इसके अलावा डसॉल्ट से हमने एक और करे हैं. कौन से? अभी जो रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स में, राफेल भी है, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज होस्ट कंट्री कौन सी है
जो इस बारी अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 होस्ट करने वाली है? द आंसर फॉर द सेम इज इथोपिया इटसेल्फ। तो ये जो है हेडक्वार्टर्स भी हैं अफ्रीकन यूनियन के। सो एडिस अबाबा जो इथोपिया में है वहाँ पर ये होस्ट हुए इस बार, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री हैज अग्रीड ऑन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस? द आंसर फॉर द सेम इज फ्रांस। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कौन है वो प्रेसिडेंट जर्मनी के जो वापस से री इलेक्ट हुए हैं in elections that were hosted in 2022? The answer for the same is Frank Walter Steinmeier. The next one is सैन्या रणक क्षेत्रम जो है ये फर्स्ट हैकाथन है जो ऑर्गेनाइज किया गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर फॉर द सेम इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अपना फर्स्ट एवर हैकाथन जो है ऑर्गेनाइज किया है। मैंने आरबीआई का फर्स्ट हैकाथन बताया था आप लोगों को, राइट, इन द वीडियो। उसका बताना उसका आंसर क्या है। Moving on to the next one, which country has assumed the chairmanship of IORA for the 21st annual meeting? अभी हमने डिस्कस किया था, राइट, कि मीटिंग कहाँ होने वाली है, बांग्लादेश में होने वाली थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। सो हेडक्वार्टर अगर IORA की बात करते हैं सो वो है मॉरिशस में, ठीक है। और इसमें पहले जब स्टार्ट हुआ था तो 14 मेंबर्स होते थे, आज की डेट में एक्सपैंड होकर 23 मेंबर्स हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मेंबर्स है टू बी रिमेंबर्ड। सो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यू कैन अवॉइड इट, ओके। एंड ये जो IORA है ये साउथ अफ्रीका और इंडिया ने सोच के, मतलब इसका जो इनिशिएशन हुआ था वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही 14 मेंबर्स थे, ठीक है। Which country has become the world's newest republic and Dame Sandra Prunella जो है वो सेलेक्ट की गई हैं as a first president of this country? So इसका जो आंसर है that is Barbados। very very important, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इनका नाम भी आ सकता है who is the president of this country, ये भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये क्या है, ये एक कैरिबियन आइलैंड है, ओके। और अभी अभी रिसेंटली क्या किया गया है, थ्रू अ पर्टिकुलर सेरेमनी जो क्वीन एलिजाबेथ टू हैं वो इसकी हेड की रूप में से हटाई गई हैं, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द न्यू 2021 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडिया जो है उसकी क्या रैंक आई है? और इवन जॉर्डन और इंडिया दोनों की वही सेम रैंक है। तो क्या रैंक है इस बारी इंडिया और जॉर्डन की? दैट इज 66th रैंक है। द नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च्ड Waste Wise Cities Best Practices in Municipal Solid Waste Management Report, and the second thing is E-Sawari India Electric Bus Coalition. सो अगर इसकी बात करें द आंसर फॉर द सेम इज नीति आयोग। नीति आयोग इज टू इंपॉर्टेंट, इसकी रिपोर्ट्स कुछ भी चीज़ है जो कि न्यूज़ में है नीति आयोग के रिलेटेड, दैट गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ 8th इंडियन ओशन डायलॉग। सो अगर इसकी बात करें, leveraging digital technologies for health, education, development and trade in IORA member state, ये था इसका, ठीक है। Moving on to the next one, which state topped amongst 34 states and union territories in the implementation of श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है दैट हैज टॉप्ड। सेकंड पे कौन आया है? तमिलनाडु। और थर्ड पे कौन आया है? गुजरात। ये जो है 4 year old दिस स्कीम इज देयर एंड इसका जो मेन काम है दैट इज कि स्टिम्युलेट कर सके लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसका मेजर फोकस है। और इसका एक और काम है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको एनहांस कर सके, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ होस्ट हुई थी इस बारी? दैट वाज होस्टेड इन आबू धाबी एंड इसकी जो थीम थी दैट वाज इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है अंडर विच मिनिस्ट्री? सो इट इज अंडर व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। Moving on to the next one, that is which tiger reserve has been awarded prestigious international 2 times award for doubling its tiger population since 2010? So 2010 से 2020 तक इस टाइगर रिजर्व ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसका आंसर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? इट इज इन
Tamil Nadu. Okay. Coming to the next one, which tunnel has officially been certified by World Book of Records as world's longest highway tunnel, that is about 10,000 feet? कौन सा है ये? The answer for the same is अटल टनल. ठीक है, अटल टनल है इसका आंसर. और इस टनल की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स. अच्छा, ये कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है ये आप मुझे बताएंगे. मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाले जो करंट अफेयर्स है उसमें. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो ट्रेडिशनल तोरग्या फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट में बाय मोनपा कम्युनिटी? सो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ लाइक अ न्यू ईयर फॉर देम. और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है तो उससे जो भी मोंगपा कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी लोग बाग हैं इस कम्युनिटी के अंदर, उससे जो है वो सेफ रखे कोई भी ऐसा डिज़ास्टर होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज 11th मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ओमान जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहाँ होस्ट हुई थी? इट वॉज होस्टेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. ठीक है, coming to the next and the last question, that is which country was India's topmost trading partner in 2021? The answer for the same is United States of America. इस बार टॉप मोस्ट रहा है. और सेकंड पे कौन सा रहा है? चाइना रहा है. ठीक है, अब अगर बात करें 2020 की तो उसमें किसने टॉप किया था? चाइना ने टॉप किया था. और सेकंड जो आया था दैट वाज यूएसए. और अगर 2019 की बात करें तो यूएसए ने टॉप किया था एंड सेकंड कौन सा आया था? चाइना. ठीक है, तो दिस वॉज अ केस. लेकिन अगर 2021 की बात करते हैं, दिस इज द आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस आई एंड all the current affairs series that had been there on the YouTube channel. I hope that the revision series would have helped you a lot because आप 5-6 महीने से पढ़ रहे हो and you must have like read everything and आपको concise form में सारी चीज़ revise करने के लिए provide की गई हैं. So I hope it would have been very useful and it was my pleasure to help you out to study your current affairs, to understand which areas are important, and I'm very very sure कि जितनी भी videos हैं they are going to help you tremendously in the examination. And all the best you guys, with all my heart and with all the heart of Inside SSB team. We wish you good luck, wishing for great results for all of you. You have been putting so much hard work and sweat in this preparation. और बस हम लोगों की एक ही विश है दैट यू गाइज डू एक्सट्रीमली गुड इन द एग्जामिनेशन. एंड प्लीज़ जैसे ही आप एग्जाम से बाहर आते हैं, मेक श्योर दैट यू टेक्स्ट अस on 7982047997. That's WhatsApp number. And on Instagram as in how exactly your examination went. ठीक है, and कैसा था level इस बार एग्जाम का, प्लीज़ टेक्स्ट करना. बहुत अच्छा लगता है when we work hard and you kind of praise it. So thank you so much, all the best, and just wishing for that good result for all of you. And just keep one thing in your mind, guys. You are the best and you will make it through. If you have thought of becoming an officer from your heart, nobody can stop you from reaching that position. चलो, बहुत स्पीच हो गई आज के लिए. All the best and keep working smart and rock it in examination.